for your patience. Thank you so much for coming. Many of you know my name. My name is Deepak Luthra. I'm the Vice President of the Narrators, a Performing Arts Society. But aaj, I'm a dad. I'm a proud father to have two very beautiful girls. And out of one is on my left, which is Nikasha Luthra. They always say, when you have girls, you're blessed. And I'm double blessed actually. Let's put it this way. Now, when you have a girl like her, which was born on the 9th of June 2007, that was my proud moment, my firstborn. And today is another proud moment for me. That firstborn has given her first book. That is the biggest proud moment of my life, at least. Books तो बहुत आती हैं, लेकिन पहली book बहुत special होती है, पहला बच्चा बहुत special होता है, especially जब वो girl हो. That's my proud moment, and I'm not going to speak much. Forget the vice presidency or everything. I'm just a proud father, and handing over to the author Nikasha Luthra for her book. Good morning, everyone. सबसे पहले, thank you so much for coming here and giving us your time. So, The Flowers in Her Room, it talks about intimate human emotions, and काफ़ी ही light शब्दों में मैंने कोशिश करी है deep emotions को portray करने की. First play, which is 12 Apples, talks about how the human mind struggles to be in the circle of a relationship. The second one, which is the emptiness inside the heart, it talks about how whenever we read a book, we read a chapter and then move on. It is about how in life also we need to move on and stop reading that previous chapter. The third one is The Silence of His Lips. It talks about the cruelty towards little children of our society and how their silences are unheard by all of us. The fourth one is When She Opened Her Eyes. It's about whenever life gives us challenges, we should always face them with a smile on our face and with wings of bravery. The last one is Louis XVI, who was the Emperor of France during the French Revolution, and how the entire nation of France was blaming him for what was happening. And while I was researching about Louis XVI, I couldn't find an article which sympathized with Louis. So it is my pleasure to tell you that I tried to convey his mental state and his family's mental state through my plays. So thank you. Well, before we get into the question answer round, just wanted to tell you कि हम इस stage को Nisha Luthra, तो she already you know as a director, an actor, and an author. We are staging 2 plays in Mini Tagore Theatre on 2nd of September. निकाशा के 2 plays को हम stage कर रहे हैं 6 बजे 2 सितंबर को. उसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि निशा लूथरा जी बताएं जरा. Thank you. Sorry, you gotta take this like this. हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार. सबसे पहले धन्यवाद हमारी बेटी को अपनी बेटी मानने के लिए और अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के यहाँ आने के लिए. जो 2 प्लेस है वो इनकी 2 कहानियों पे आधारित है, जो कि पहली कहानी है एम्प्टीनेस इनसाइड द हार्ट, जिसमें कि एक ऐसी भावना के बारे में इन्होंने बात की है कि जो पूरी जिंदगी पूरी होते हुए भी अधूरी दिखती है. जब किसी एक इंसान की कमी इतनी बड़ी हो जाती है कि बाकी सब चीज़ें छोटी लगने लगती हैं. एक प्यार पर आधारित है जो पूरा नहीं हो सका. तो ये एक राइटर की फ्लाइट है, जो कि एक राइटर के पंख हैं जो वो ले सकती हैं अपने इमेजिनेशन में, जिन भावनाओं का उन्होंने खुद अभी तक अनुभव नहीं किया है उसको लिखा है. और हमने पूरी कोशिश की है कि हम उन भावनाओं को और उन लेयर्स को आप सबके सामने रख सकें. छोटा प्ले है और छोटी सी उसकी प्रस्तुति है. सेकंड जो दूसरी कहानी, जो दूसरा प्ले है,
उसका नाम है 12 एप्पल्स। किस तरह से एक छोटी सी चीज़, एक 12 सेब किसी की जिंदगी में खलबली मचा के रख दे, कुछ ऐसा इन्होंने लिखा है और कुछ वैसा ही हम कहने की कोशिश करेंगे। मिनी जिगोर थिएटर में इस बार हमने ग्रीक थिएटर के बेस पे स्टेज क्रिएट किया है, जहाँ पर चारों तरफ से ऑडियंस हमारे एक्टर्स को देख सकती है। जनरली एक 3 डायमेंशनल स्पेस में एक एक्टर जो है वो अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है और दर्शकों के सामने इसमें चारों तरफ से ऑडियंस जो है उनकी कहानी को देख सकती है। तो एक नया अनुभव होगा, अगर आप सब आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 2 कहानियाँ 35 से 38 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी और उसमें लाइव वायलिन है जो कि करणदीप जी हैं, जो कि एक वायलिन के स्टूडेंट हैं, वो बजा रहे हैं। शिवम ढल है, देवज्योति गुलाटी हैं और राजा सुब्रमण्यम है, जो 3 अहम कैरेक्टर हैं वो निभा रहे हैं। सेट डिज़ाइन सार्थक नरूला का है और डायरेक्ट उसको मैंने किया है। तो आप आइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आप सबको देख के। थैंक यू, थैंक यू। अब इस यंग ऑथर के क्वेश्चंस, 15 साल की उम्र में बच्ची ने बुक लिख दी। मैं बहुत प्राउड हूँ, मैं सबसे शेयर भी कर रहा था, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस बिटिया को सपोर्ट करने के लिए। My favorite playwright of all time is Anton Chekhov, हम जानते हैं। प्लेराइट्स हिंदुस्तानी मैंने अभी ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग दैट फील्ड, बट आई डू रीड अदर बुक्स लाइक अगाथा क्रिस्टी, चार्ल्स डिकिंस, जे शेट्टी, एंड yes, obviously Anton Chekhov. I've been doing theatre since the age of 7, and whenever I'm on the stage, I just feel like there's something right about it, and I know what to do and exactly what to do. So when I was writing these plays, it came very naturally to me than rather a short story or a book of poems. So that is why I chose to write plays and not short stories. मैंने कुल मिला के 5 शॉर्ट प्लेस लिखे हैं। उनमें से ये सारे इंटर रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। व्हेन शी ओपन्ड हर आइज़ एक ऐसा प्ले है जिसपे होप का मैसेज है। अब जब कोविड में हम सबको, पूरी दुनिया को एक होप का ज़रिया चाहिए था, तो मैंने उसी कारण ये प्ले लिखा। जो 5वां प्ले है मेरा, लुइस 16th, मैं अपनी हिस्ट्री क्लास में थी जब मुझे ये आइडिया आया उसके बारे में लिखने के लिए। जैसे मैंने अभी पहले बोला था कि मैं जब रिसर्च कर रही थी लुइस के बारे में, मुझे सिर्फ यही दिखा कि एक पूरी नेशन एक राजा को ब्लेम कर रही है जो कुछ भी हो रहा है रेवोल्यूशन के दौरान। तो इस प्ले में मैंने लुइस की साइड लेने की कोशिश करी है एंड उसकी जो भी इंटरनल एंड मेंटल स्ट्रगल्स थे उसकी फैमिली के साथ, वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। बाकी जो प्ले हैं मेरे, दे आर बेस्ड ऑन रोमांस एंड मैं एक्चुअली एक बहुत ज़्यादा, हम कोविड में बिंज वॉचिंग कर रहे थे, तो मैं देख रही थी कि किसी भी सीरीज़ में एक रियलिटी का कोई भी फॉर्म नहीं है, सब में एंड में जाके हैप्पी सी एंडिंग है। तो एम्प्टीनेस इनसाइड द हार्ट, उसमें भी थोड़े जॉयफुल मोमेंट्स हैं प्यार के, यस, बट लास्ट में जाके उतना हैप्पी नहीं है जितना हमें अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री पोर्ट्रे करती है कि लाइफ उतनी अच्छी है हमारे साथ। तो वो मेरी कोशिश थी पोर्ट्रे करने की।
वो तो मेरे को देखिए, जब मैं पढ़ रही थी कहानियाँ, जैसे मैंने बोला मूवीज़, हमेशा जब भी कोई कहता है कि एक बच्चे ने किताब लिखी है या फिर कुछ लिखी है, सबको एक थोड़ी सी तो इमेज आती है कि बच्चों वाली कहानियाँ होंगी। तो फिर मेरी कोशिश वो थी कि वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करने की, कि उम्र की कोई उम्र इज़ नॉट अ रीज़न टू लिमिट योर स्टोरीज एंड टू लिमिट योर माइंड, द स्काई इज़ द लिमिट। तो फिर मेरी वो कोशिश थी एंड वो होप था मेरा कि मैं वो स्टीरियोटाइप सारे टीनेजर्स के लिए ब्रेक करूँ। Yes. कहानी और जो प्लेज होते हैं उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि यू हैव रिक्वायर्ड द कैरेक्टर्स इन प्लेज। तो वो जो आपने कैरेक्टर इसमें भरे हैं, वो कैरेक्टर आपको अपने आसपास घूमते हुए दिखाई दिए, या आपने समाज में से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की बातों या कैरेक्टर्स को ढूंढते हुए मतलब किस तरीके का मैसेज उनके जरिए देने का प्रयास किया? हम सब अमृता प्रीतम के बारे में तो जानते ही हैं। तो एक ऐसा भी एक प्ले था जिसमें अमृता प्रीतम लिख रही है सिर्फ, एंड उसको अपने कैरेक्टर्स, वो अपने कैरेक्टर से खुद बात कर रही है। तो जब भी कोई राइटर कुछ भी लिखता है, स्पेशली प्लेस, जब पूरे डायलॉग्स, पूरी लाइट सेटिंग, सब कुछ होता है साथ में, तो कोशिश होती है कि वो उससे असली में वार्तालाप कर पाए। नहीं, मैंने अपनी रियल लाइफ से ये कैरेक्टर्स एज मच उठाए नहीं है, ये सारे इमेजिनरी हैं। बट जो लुइस 16 है वो एक लौता है जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पर बेस्ड है। जब भी मैंने एक प्ले ख़त्म किया था, मैं जाती थी अपनी मम्मा के पास एंड वो सारा प्ले में उनको स्टोरी बताती थी, सब कुछ बताती थी, वो बिल्कुल कामली मेरे को सारे रिव्यूज़ वगैरह भी बताती थी। तो जो आखिरी प्ले था लुइस 16, उसको लिखने में मैं थोड़ा सा आलस हो रहा था, पढ़ाई वगैरह सबका हो रहा था, तो उन्होंने मेरे को पुश किया, सपोर्ट किया कि ये ख़त्म करो। एंड यस, मेरे फादर ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे को बताया कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट टू शोकेस योर टैलेंट टू द वर्ल्ड, कि कुछ भी हो, चाहे एक छोटी सी ही किताब हो, क्या पता किसी को कल कुछ इम्पैक्ट मिले उन स्टोरीज से। एंड ये पूरी किताब कंपाइल हुई थी अराउंड 1.5 years में। चेंजेस, यस, जब मेरी स्टोरी थोड़ी सी ऑफ ट्रैक जा रही थी, क्योंकि मेरी मम्मा थिएटर बैकग्राउंड से ही हैं, तो फिर शी गिव मी हर एक्सपीरियंस रिव्यूज़ कि कैसे होना चाहिए एंड कैसे ऑडियंस को स्टोरी समझ आएगी मोर प्रॉपरली। तो यस। and जहाँ sorry एक्चुअली कल परसों ही हम हिटलर का चैप्टर क्लास में पढ़ रहे थे एंड तभी मेरे को आइडिया आया था हिटलर के नाज़ीज़ के बारे में लिखने के लिए। सो वो भी अंडर वर्क्स है अभी। we understand what you're saying. good one. And that time also economic crisis, या that's why I अच्छा। मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक बात आई मेरी कंट्रीब्यूशन की, बेसिकली आई तो जस्ट डू योर बिट। साहित्य की जहाँ आपने बात की, सर साहित्य से मेरा कोई लेना देना नहीं, आई एम जस्ट एन एजुकेशनलिस्ट। जस्ट वांटेड टू मेक अ जोक दैट टाइम। यस। English में हिंदी लिखी। I've written English and Hindi, so Roman Hindi. So yes. So you know the language we use for texting, and so that it is easier for everyone to read, not only a Hindi educate or someone who is ace in Hindi. So I wanted everybody to read it because they're very good stories and they're good on the mind. निशा पीछे आ। पूरी छोटी की उम्र में देखना शुरू करना है कि आप भी जा रहे हैं, तो जब हम कुछ जानने हो तो आगे के टीचर में बहुत सब तरह महसूस करते हैं। उसी तरह अपना पूरी की तरह उन्होंने
मेरे को हिंदी में बता मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि जब आप स्कूल जाते हो ये बुक जब आपने लिख दी तो आपके जो टीचर्स हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं वो इस चीज़ को किस तरह से ले रहे हैं? You can talk about your launch. या अभी 1-2 हफ्ते पहले मैंने अपनी स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में लॉन्च करी थी बुक एंड मैंने इसी तरह अपने सारे प्लेस के बारे में छोटी छोटी लफ्ज़ों में बताया। जो मेरी टीचर्स हैं यस वो हर क्लास में आके मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, मेरे दोस्त भी मुझसे बहुत सहमत हैं एंड वो सब मेरा प्ले देखने आ रहे हैं फ्राइडे को। तो अभी तक तो मुझे सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले हैं, थैंकफुली, टचवुड। That's a good question. I actually also want to listen to this. Actually, since I'm just in 9th class and it is very unclear what I want to do in life. So if the circumstances are kind enough, then yes, I would love to be in the artistic field of life and follow my passion for writing. And to be a bit logical, I think a business degree would be suitable. Like it would be a logical decision. So he's balanced it out. बेटा Sir. एक्चुअली ये एक मेटाफोरिकल टाइटल है। तो क्योंकि ये मैंने प्लेस कोविड के टाइम लिखे थे जब सब अपने अपने घरों में बंद थे। नहीं, एक्चुअली ये फ्लावर्स एक ईडियम है एंड ये फ्लावर्स मेरी राइटिंग्स को डिपिक्ट करते हैं जो मैंने अपने कमरे में बैठ के लिखी थी कोविड के वक्त। तो यस। बुक लॉन्च करो। Yes. वैसे ये परसों होनी है। Doesn't matter. On 1, 2, and 3. Thank you so much. So I think now she should be alone. She can stay She should alone. be alone. Yes. Yes.